जय मसीह की। और हम आप सभी का बेहद हम स्वागत करते हैं इस मातृ दिवस के मदर्स डे के इस ऑनलाइन सर्विस में। और हम आप इस दुनिया के जितने सारे मदर्स हैं और इंडिया के जितने सारे मदर्स हैं जो स्टेट के हर एक स्टेट के कोने कोने में जो भी हैं, हम आप सभी को इस मातृ दिवस के शुभ अवसर पर हम आपको हार्दिक हम आपको शुभकामनाएं हम देते हैं पीस चर्च के तरफ से और रेवरेंड तेजा राव की फैमिली की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और वचन में आगे जाने से पहले वी हैव आवर स्पेशल गेस्ट फ्रॉम मणिपुर, ब्रदर लुंगवांबा। So he will sing one song in a Manipuri language and I hope you will enjoy this song। और मुझे आशा है कि आप इस गाने को आप एंजॉय आप करेंगे आप लोग। और ब्रदर लुंगवांबा जो मणिपुर से हैं इस गीत को गाने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग आज के वचन को हम सुनेंगे हम रेवरेंड सलोमे रिम्ब्रॉय की तरफ से। आइए हम लोग इस गीत को हम सुनते हैं। Happy Mother's Day to everyone. Thank you. Taibangda tirubada panglaroidaba changdam ningai leitraba imagi minungshi thaujaladu kaungamda nalairi ngasisu miku khudi nachagi thamoina o ima palem ima nungsibi ngamlaroi sinba imagi khonglang laman o ima palem ima nungsibi ngamlaroi sinba imagi khonglang laman ngasisu sondunata lairi nachana ima o ima aina imanang naleitraba da ihang hangi nacha aigi punsi se tau phong khăn de lamo nadu nalei imanang iminung shi ado Kaura duna delena chanana o ima palem ima nung shibi ngamlaroi sinba imagi khonglang laman o ima palem ima nung shibi ngamlaroi sinba imagi khonglang laman ngasisu sondunata lairi nachana ima o ima haina ngasisu sondunata
lấy vì na chana ima o ima hai na. Thank you so much. God bless everyone. Hello, welcome again. Hello everyone. Hello everyone. I'd like to thank the Almighty God and the church and brother Samuel for giving me this opportunity to share the word or a kind of a translation of the song, and wishing you again happy Mother's Day to all the mother. The song actually talks about the longingness that I have for a mother, for my mother. Well, I do have my mother, and there are few out there who longs for a mother, and definitely a mother's love is no comparison to anything that we have physically in this world. So we have seen in Isaiah chapter 66 verse 13, it says, as one whom his mother comforts, so I will comfort you, and you shall be comforted in Jerusalem. This is the comfort that God gives out to the Israelites during times of need. So God knows the need of a child, of his children, Israelites. So as a mother knows the need of the child, and the child longs for the love that the mother gave out unconditionally. So the song also talks about there is none in this world that I can even search of to replace about your love, and the love, the care that a mother gives for a child. That love is what longing by a child expressed in this song. Yes, and every day, every moment, your child, I am longing for that child. The chorus cries out, Mother, oh Mother, there is nothing that we can repay for the love that you have given to us. And goes on to second verse. It talks about the emptiness or the hole that has left in our hearts without a mother, So yes, it talks about in my life it has been such a emptiness that has brought without you, without your love, and even I am perplexed. I am not in the state of peace without you in this world. That is what a child is longing and crying out. And even I'm longing for you even today. So the song talks about how longing a child to his mother's love. So as it is written in Isaiah also, that God also gives us a comfort, an assurance, intimacy that a mother gave out to her children. So yes, we are so blessed to be children of God, to have that love from God, and it is a special day that we want to appreciate the love that a mother gives out to her children. So once again, wishing every mother a happy Mother's Day. Thank you so much. God bless. Thank you so much. God bless everyone. मुझे आशा है प्रियो, ये स्पेशल सॉन्ग ब्रदर लुम्बावा की तरफ से आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा प्रियो कि मणिपुर स्टेट के लिए आप प्रार्थना करें कि वहाँ पे परमेश्वर बहुत ही आशीष दे, और वहाँ के गवर्नमेंट को प्रभु आशीष दे, और वहाँ के स्टेट के जितने सारे लोग हैं प्रभु उनको बहुतायत की उनको आशीष, अबंडेंटली ब्लेसिंग्स हमेशा हमेशा उनके ऊपर बनी रहे और आशीष बनी रहे प्रियो। हालेलुया। और आइए हम लोग आज के वचन को हम सुनेंगे रेवरेंड सलोमी रिम्ब्रॉय की तरफ से। और वचन में जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जो YouTube पर है और Facebook में है, इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके आप अपने फैमिली के संग इस वीडियो को आप शेयर करिए। परमेश्वर आपको बहुत 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 आपको आशीष देगा। Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। I'm so thankful to Reverend Teja Rao and his family for arranging this wonderful Mother's Day service.
और हम रेवरेंड तेजाराव आचार्य को और उनके फैमिली को और उनके चर्च को हम धन्यवाद देते हैं कि इस मातृ दिवस के शुभ अवसर पर मुझे बोलने का मुझे मौका दिया गया। So I want to wish all the mothers and all the grandmothers and even the fathers who are playing the role of mother a very very happy Mother's Day. मैं उन सभी माताओं को और दादियों को और पिताओं को मैं शुभकामना में देना चाहती हूँ जो माँ का भूमिका निभा रहे हैं। Those who haven't wished your mother or your grandmother a happy Mother's Day, please kindly wish. और आप में से जितने जन भी अगर अभी तक मातृ दिवस को अपने माता को और अपने बुजुर्ग को अभी तक नहीं बोले हैं, प्लीज आप लोग जाएं और उनको हार्दिक शुभकामनाएं दें। This is the day to revere, to honor and to respect your mothers. और आज का ये वही दिन है कि हम अपने माता का हम लोग सम्मान करें और उनको और बढ़ाएं। This is the day to remember their contributions, the roles that they play in our lives. और हम उनका धन्यवाद देंगे हम कि उन्होंने जो चीज जो हमारे जीवन में जो निभाई है और जिस रीति से हमें संभाला है, उन सभी को याद करते हुए उनको हम हार्दिक शुभकामनाएं देंगे हम। We may not be thankful to our mothers every day, but at least today, let us join together and be thankful to our mothers. हो सकता है कि हम हर दिन हम धन्यवादित नहीं हो पाते हैं अपने माता के लिए, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगी कि आप जाकर अपने माताओं को आप धन्यवादित का एक मन के चढ़ाएं। In Mother's Day was being celebrated from ancient days. और ये जो मातृ दिवस है ये सिर्फ आज के समय से नहीं बल्कि ये एक बहुत ही पुराने काल से चलती आ रही है। Ancient cultures honored motherhood. और ये बहुत ही पुराने काल से चलते आ रही है जहाँ पे हम मातृ दिवस को हम देखते हैं। In Greece, people celebrated Rhea. That means she was the mother of gods. और ग्रीस नामक एक शहर देश में जो यूरोप कंट्री में है और वहाँ पर रिया के नाम में इसे मनाया जाता है। They celebrated with offerings and with festivities. उन्होंने भोग और उत्सव के साथ उस जश्न को मनाया। In Rome, they call a festival called Hilaria to honor Cybele. और रोम में जो कि दक्षिण यूरोप में है पाया जाता है, वहाँ पे साइबेले करके इस मातृ दिवस को मनाया जाता है। Cybele was the mother of goddess. और साइबेले जिसको हम बोल रहे हैं ये है जो एक देवी है जिसको लोग मातृ दिवस करके और मनाते हैं। They celebrated in honor of her for 3 long days. और वो सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि वो 3 दिन का वो सभा होती है जहाँ पे महिला को वहाँ पे उत्साहित किया जाता है। In ancient Egypt, they honor Isis. She was the mother of pharaohs. और पुराने काल में मिस्र में भी हम कुछ इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसिस नाम के एक फिरौन देवी है जिसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। She was revered as a symbol of maternal devotion. और जिसको दिखाया जा रहा है कि जिसको हम पूरे पूर्ण रीति से संपूर्ण रीति से वहाँ के लोग मिस्री लोग उनको पूजा करते थे। But we also need to know who founded or who started this our modern Mother's Day. लेकिन आज हम इस जानकारी को हम हासिल करेंगे कि इस मातृ दिवस को शुरुआत किसने किया और हम इसे किस रीति से हम देख रहे आजकल के जीवन में। There was a one girl called social activities. Her name was Anna Jarvis. एक लड़की थी जिसका नाम एना जार्विस थी और वो सामाजिक कार्यकर्ता थी। She was wanting to dedicate one day special to all the mothers. और वो एक दिन पूरे महिलाओं लोगों के लिए वो एक दिन अलग करके उनको वो उत्साहित तरीके से मनाना चाहती थी। She got inspiration from her own mother. और ये जो उत्साहित उनको मिला उनको अपनी माँ से उनको मिला था। Her mother's name was Anne
Maria Jarvis. और उनके माता का नाम था एन मारिया जार्विस। She was a social activist. और वो सामाजिक कार्यकर्ता थी वो। There was civil war in America from 1861 to 1865. और 1861 से लेकर 1865 के करीब एक बहुत बड़ी जंग हुई अमेरिका में। This Anna Jarvis mother, she was organizing women groups to take care of these wounded soldiers. और एना जार्विस के जो माँ है उनको ये काम उनको दिया गया था कि जितने लोग इस युद्ध में जो घायल हो रहे हैं उनकी वो देखभाल करें। She tirelessly worked in order to do service to those wounded soldiers. और वो बहुत ही उत्साहित रीति के संग, उनके ऊपर कोई जोर नहीं था बल्कि वो अपने मन से ही वो इस काम को वो कर रहे थे क्योंकि उनको अच्छा लग रहा था। And this Anna Jarvis mother, she used to say that, I hope and pray that someone sometime will dedicate a day to honor mothers and their unparalleled service to humanity in every area of life. एना जार्विस की माँ, उनको आशा थी और वो प्रार्थना करती थी कि एक दिन कोई ऐसा एक व्यक्ति आएगा जो माताओं को लेकर जो एक दिन को डेडिकेट करेगा, अलग करेगा, ताकि मानव के क्षेत्र में याद रखा जाए। In the year 1905, Anna Jarvis' mother, Anne Maria, passed away. 1905 के समय में एना जार्विस की जो माँ है उनका देहांत हो गया। And she wanted to fulfill her mother's desire and hope. और उनका जो काम था उनको लेकर एना जार्विस उनको लेकर वो आगे बढ़ना चाहते थे, उनकी बातों को अपने दिल पे वो रखी थी। So she founded an association called International Mother's Day Association. और उनकी याद में उनकी बेटी ने अंतरराष्ट्रीय मातृ संघ की स्थापना को रखा। After 2 years, first Mother's Day service was held in 1907. और 1907 के दशक में पहली बार ये महिला दिवस की सभा रखी गई। Anna Jarvis gave that day 500 carnation, the favorite flower of her mother, to the church, to 500 women. और एना जार्विस ने तकरीबन 500 से भी अधिक एक सादे कलर के फूल को उन्होंने वहां पे चढ़ाया अपनी माँ के याद में। In that church, Anna Jarvis' mother was teaching to the Sunday school children for 25 years. और उनकी माँ की याद में जब उन्होंने चढ़ाया और 25 सालों तक उन्होंने इस काम को स्कूल में उन्होंने पढ़ाया और अपने माँ के कही भी बातों को अपने मन में रखा। This special white carnation, this flower was her favorite flower. और ये जो सादे कलर के फूल को जो हम देख रहे हैं, ये फूल उनके माँ के बहुत ही दिल के करीब थी और यही फूल है जो एना जार्विस ने अपनी माँ के ऊपर चढ़ाया था। This flower symbolizes purity, love, and enduring motherhood. और ये जो फूल है जिनको हम देख रहे हैं, ये पवित्रता को दर्शाता है और मन भावने को दर्शाता है और प्यार को ये दर्शाता है। In the year 1914, Woodrow Wilson, 20th President of USA, finally signed official law to celebrate Mother's Day. 1914 के दशक में राष्ट्रपति ने विडो विल्सन ने इस बात को लिख दिया कि हम महिला मातृ दिवस को हम लोग बहुत ही सम्मान की रीति से मनाएंगे और पूरे देश भर में छुट्टी का ऐलान कर दिया। This is what historically Mother's Day came into being. और ऐतिहासिक रूप से मातृ दिवस का शुरुआत ऐसे ही हुआ था। Most of the countries celebrated Mother's Day on second Sunday of May. और बहुत सारे ऐसे देश हैं आज भी जो दूसरा संडे रविवार मातृ दिवस को मनाते हैं। Now let us ask question to ourselves, why should we respect and honor our mother?
और क्या हम आज अपने आप से एक सवाल हम कर सकते हैं कि क्यों हम अपने माँ को हम सम्मान दें और सम्मान हम करें? Let us see today what we should do to respect our mothers. क्या हम ये इस बात को हम देख सकते हैं, क्या हम जान सकते हैं कि हम अपने माँ को क्यों हम सम्मान दें? और आज हम इस बात को देखेंगे कि हम किस रीति से अपने माँ को हम सम्मान दे सकते हैं। Whether you agreed or not, whether you like it or not, mother are the source of life. अगर आपको ये बात अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि आपका माँ आपका एक पहला काम और पहला एक प्यार है और सबसे पहले आपको उन्हीं को आपको सम्मान देना है। Mothers are the foundation of our character. और हमारी जो माँ है वो हमारी नींव है, जो हम बोलते हैं, जो हम चलते हैं, हमारे चाल चलन, हमारे स्वभाव में माँ हमारी सबसे पहली हमारी नींव है। She is the source of love. और वो हर एक प्यार का, प्रेम का एक केंद्र है। Mothers carry life, offer unconditional love for us. और माँ का जो प्यार है प्रियो, माँ का प्यार कुछ ऐसा प्यार नहीं, बल्कि वो एक ऐसा प्यार है, एक बहाव की तरह प्यार है जो हमसे कभी भी जुदा वो नहीं होती। So let us not forget that we should honor our mother because it is a command from God our Father. और मैं आपसे कहता हूँ प्रियो कि इस बात को कभी भी ना भूले कि ये आज्ञा है परमेश्वर की तरफ से कि अपने माँ को हम सम्मान की रीति से उनको हम देखें और उनको हम प्यार करें। If you open your Bible to Exodus chapter 20 verse 12, it says, "Honor your father and your mother so that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you." जिस रीति से निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसके 12वें पद में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि अपनी माता और अपने पिता का आदर करो, यह इसलिए करो कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा जिस धरती से तुम्हें ये देख रहा है, तुम्हें वो अधिक जीवन भांति दे सके। This is the fifth commandment in 10 commandments that God has given to the Israelites. और ये जो वचन आज हम लोगों ने पढ़ा प्रियो आपके मध्य में, ये 5वीं सबसे मुख्य आज्ञा है जो परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया था। Out of these 10 commandments, the first 4 commandments are our duties towards God. और जो 10 आज्ञाओं में जो पहली जो 4 आज्ञा हैं वो इस रीति से दर्शाता है कि हम अपने प्यार को और अपने आप को परमेश्वर की तरफ किस रीति से हम अपने आप को देंगे। This fifth one, the middle one, is our duty towards our parents. और जो 5वां जो है ये हमें ये दर्शाता है परमेश्वर की तरफ से इजरायलियों के लिए और आज हमारे लिए भी यही इस वचन को दर्शाता है कि हम अपने माता को और अपने पिता को किस रीति से हम सम्मान देंगे और प्यार करेंगे। The last 5 commandments are our duties towards our society. और जो आखिरी के जो 5 जो मुख्य आज्ञा है जो परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया, ये हम किस रीति से अपने चाल चलन में और अपने बाहर की जिंदगी में, अपने आसपास की जिंदगी किस रीति से हम जिएंगे, उस रीति को दर्शाता है। The same verse we can find in Ephesians chapter 6 verse 2 and 3. It says that honor your father and your mother. This is the first commandment with a promise. Verse 3 says that so that it may be well with you and you may live long on the earth. इफिसियों उसका 6 अध्याय और उसका 2 पद और उसके 3 पद में कुछ इस प्रकार लिखा गया है कि अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। This is not an option whether you want to do or we don't want to do, but it is a command from our God. और ये परमेश्वर के तरफ से ये कोई ऑप्शनल नहीं है हमारे लिए कि हम ये करना है या नहीं करना है, बल्कि ये आज्ञा है कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना है। Why God wants us to honor our mother and our father? परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम अपने माता और पिता का सम्मान करें?
If we honor or if we respect our parents, God, we are respecting our God as well. और परमेश्वर जो हमें सिखाता है कि जब हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम परमेश्वर का भी हम सम्मान कर रहे हैं और आदर कर रहे हैं। If we respect our parents, it will reflect our honor to our God. और हम जिस रीति से अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि हम अपने परमेश्वर को भी आदर देते हैं और सम्मान देते हैं। Some children don't want to honor their parents. कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने माता पिता को बिल्कुल सम्मान देना पसंद नहीं करते। For them, others are more important than parents. और कुछ लोग हैं कि दूसरों से ज्यादा अपने दूसरे लोगों को पसंद करते, अपने माता पिता से ज्यादा दूसरे लोगों को पसंद करते हैं सम्मान देना। Let me tell you, friends, that teachers will come and go. दोस्तों, मैं आपसे बस एक बात कहना चाहती हूँ कि अध्यापक आएंगे और जाएंगे। Bosses will be hired and they will be retired one day. और जो आपके जो प्रधान हैं, वो जो आपके संग रहते हैं, आपके कामों में, वो एक दिन है, वो एक दिन चले जाएंगे। Our politicians, our MLAs, our presidents, our prime ministers will come and go and leave their office one day. और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और एमएलए और जितने सारे विधायक हैं, वो एक दिन आएंगे और एक दिन चले जाएंगे और अपने ऑफिसों को भी वो खाली कर देंगे। Our friends will be sometimes friend with us, but they will not stay forever with us. और हमारे जो दोस्त हैं, वो एक दिन हमारे संग है, लेकिन दूसरे दिन वो हमारे संग नहीं रहेंगे, वो एक दिन वो चले जाएंगे। But who will always stay with us? लेकिन कौन हमारे संग हमेशा रहेगा? Our parents will always and forever stay with us. हमारे माता पिता हमेशा हमेशा वो हमारे संग रहते हैं और रहेंगे। Your parents will always be your parents. और आपके माता पिता हमेशा आपके माता पिता वो रहेंगे। Nobody can replace their positions. कोई भी उनके जगह को नहीं ले सकता है। So we should not forget to respect them. और ये बात हमें भूलनी नहीं है कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना है। With billions and millions of people around us, God chose your father and your mother to be with us. और लाखों और करोड़ों और अरबों अरबों ऐसे लोग हैं प्रियो, जो इस बातों को जानते हैं और अपने माता पिता का आदर सम्मान करते हैं। God knows that we need them. परमेश्वर जानता है कि हम उनको चाहते हैं। So it is our foremost duty to honor them. और ये हमारी ये काम है प्रियो कि हम अपने माता पिता का आदर करें। If we honor our parents, it is a picture of our relationship to our God. और जब जिस रीति से हम सम्मान करते हैं, तो इस बात को ये दिखाता है, दर्शाता है कि हम परमेश्वर को भी उतना ही हम सम्मान दे रहे हैं। If we honor them, it builds our deeper relationship with our God. और जब हम उनको सम्मान देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी क्रिया पे आ जाती है और इस बात को दर्शाता है कि हम सम्मान दे रहे हैं। I always used to hear that parents are gods whom we can see with our naked eyes. मैं ये हमेशा से मैं सुनते आ रही थी कि हम अपने खुले हुए आंखों से हम अपने माता पिता में हम अपने परमेश्वर को देख सकते हैं। So we should look up to our parents to see our God who is high on above. और जब हम अपने माता पिता को देखते हैं, आप अपने परमेश्वर को आप देख सकते हैं जो आसमान में है। So it is God has commanded to us to honor our parents. और ये परमेश्वर की तरफ से ये आज्ञा है प्रियो कि हम अपने माता पिता का आदर और सम्मान हम करें। Other people's friends, they may act like very good to us. कुछ ऐसे भी दोस्त लोग हैं आपके जो आपसे कहेंगे कि वो आपके बहुत प्रिय हैं, बहुत ही घनिष्ठ है, but they may not be always good with us. लेकिन वो हमेशा भी अच्छे और घनिष्ठ आपके संग नहीं रहेंगे। Let us not forget that our parents will always do good things for us.
लेकिन इस बात को हमेशा आप याद रखें और ध्यान रखें कि आपका जो माता पिता है वो आपके संग हमेशा हमेशा है और हमेशा आपकी अच्छा ही चाहते हैं। Secondly, let us see what do our mothers deserve. और दूसरी चीज हम देखेंगे कि हमारे माता इस मातृ दिवस में क्या चीज को दर्शाते, क्या चीज को देखना चाहते हैं। Our parents deserve our respect. और हमारे जो माता पिता है वो सम्मान के हकदार है। Friends, in the Bible, King Solomon has warned of very grave consequences if we don't respect or if we curse our parents. और राजा सोलोमन भी पवित्र शास्त्र बाइबल में कुछ इसी रीति से दर्शाता है कि जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं उनके ऊपर बहुत ही बड़ी भारी रुकावट उनके ऊपर आती है। I would like to read out this verse for all of us. It says that if you curse father or mother, your lamb will go out in utter darkness. मैं ये वचन में आप सभी से मैं शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पे लिखा गया है कि जो अपने माता पिता को श्राप देता है वो ऐसा मेमना बन जाता है जो बाहर अंधकार में अपने जीवन को जीता है। This is complete opposite to the Exodus chapter 20 verse 12. ये एक दूसरे से बिल्कुल विलुम्ब है जो कि निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा गया है। And also with Ephesians chapter 6 verse 2 and 3. और इफिसियो जैसे हम लोगों ने 6 अध्याय और उसके 2 पद और उसके 3। Proverbs chapter 20 verse 20 says that if you curse father and mother, your lamb will go out in utter darkness. और नीति वचन उसका 20 अध्याय और उसके 20 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि सोलोमन राजा इस युक्ति से इस बात को दर्शाता है कि जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं वो अपनी माँ के कुछ बाहर निकलकर वो अंधकार में वो चला जाता है। It stands a complete contrary to Ephesians chapter 6 verse 2 and 4 as well as Exodus chapter 20 verse 12. और नीति वचन उसका 20 अध्याय और उसका 20 पद जो हम लोगों ने अभी पढ़ा और जिस रीति से हमने इफिसियो उसका 6 अध्याय और 2 पद और 3 पद को हमने पढ़ा था ये बिल्कुल इसी बात को इस बात को दर्शाता है। In Exodus and Ephesians it says that if you honor your parents, your life will be long. और इफिसियो की पत्री हम लोगों ने पढ़ा और नीति वचन जो हम लोगों ने अभी पढ़ा जो इस आज्ञाओं को मानता है उसका जो जिंदगी है बहुत ही लंबी होती है। This is a wonderful promise. This is a commandment with a promise. और ये जो आज्ञा जो परमेश्वर ने दिया है हम लोगों को ये आज्ञा ही नहीं बल्कि एक सहभागिता है जो हम एक साथ करें। हम It also says that everything will go well with you if you honor your parents. और इस बात का ये प्रमाण को देता है कि जो कोई अपने माता पिता का सम्मान करता है इस वचन के आधार पर उसका जीवन बहुत ही अच्छा गुजरता है। But if you don't respect, here in Proverbs chapter 20, it says that if you don't respect, rather if you curse, you will live in utter darkness. जिस रीति से नीति वचन 20 अध्याय और उसके 20 पद में लिखा गया है कि जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है वो श्राप के हकदार होते हैं और वो अंधकार में वो चले जाते हैं। Everybody may curse you. और जितने लोग हैं सभी आपको श्राप देंगे। You will not be living a peaceful life. और आप एक शांतिदायक जीवन को आप कभी भी नहीं बिता सकते। Your life will be full of sufferings. और आपका जो जीवन है वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जिसमें आपको कहीं पर भी खुशी आपको प्राप्त नहीं होगी। You may live a very short life. और हो सकता है ऐसा भी कि आपका जीवन बहुत ही कम समय के लिए हो जाए। So we should see our parents like they are God, whom our God, our Father, has sent to us to honor and respect with. तो आइए प्रियो आज हम अपने माता पिता को सम्मान के तौर से हम देखें और उनको ऐसा प्यार दे हम उनको जिससे कि हमारी जिंदगी बढ़े और जितने सारे जो श्राप हैं वो सारे हमारे जीवन से सब हटे। There's a beautiful Chinese proverb that says that respect for one's parents is the highest duty of civil life.
चाइनीस में एक लेखक ने कुछ इस प्रकार से लिखा कि माता पिता का आदर करना नागरिक जीवन का प्रथम कर्तव्य है। In my career, I met one student. और मैं अपने पेशे में मैं एक छात्र से मैं मिली। One student came for admission. और एक स्टूडेंट जो मेरे पास आकर एडमिशन के बारे में पूछने लगा। In his application, he did not mention his parents' names. और उसने अपनी एप्लीकेशन में अपने माता पिता का नाम बिल्कुल भी नहीं लिखा। I asked him what happened. Why didn't you mention your parents' names? और जब मैंने उससे पूछा कि तुमने अपने माता पिता का नाम क्यों नहीं लिखा है उसमें, He said that they both have died. और उस लड़के ने कहा कि मेरे दोनों माता पिता अब इस संसार में जिंदा नहीं हैं। He even did not want to say properly about his parents. और वो अपने मन से इस बातों को निकाल नहीं पा रहा था, वो बोल नहीं पा रहा था कि मेरे माता पिता इस संसार में नहीं हैं। I consider such children, such people as less respect to the parents. मैं उन बच्चों को कुछ उस प्रकार से मैं देखती हूँ जिन्होंने अपने माताओं को और पिता को बहुत ही सम्मान के तौर से नहीं देखा। I sat down with him and I made him understand that you have grown up this much boy because of your parents. मैं उस बच्चे के साथ में बैठी और मैं उसको समझाने लगी कि तुम अभी तक जितने बड़े हुए हो, तुम्हारे माता और तुम्हारे पिता ने ही तुम्हें इतना बड़ा किया। Finally, he wrote his parents' name in his application. और आखिरकार में उस बच्चे ने अपने माता पिता का नाम उस एप्लीकेशन में लिखा। He is now doing a wonderful pastoral ministry. और आज वो बच्चा एक पास्टर मिनिस्ट्री वो कर रहा है। Let me ask questions. Are we giving our respect to our mothers? और आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हम अपने माता और पिता को क्या हम सम्मान हम दे रहे हैं? Let us also remember our mother's sacrifice. आइए प्रियो, हम लोग आज अपनी माँ के हर एक बलिदान को हम याद They करेंगे। do multiple jobs to run the family. और वो एक काम नहीं बल्कि अन्य अधिक काम वो करते हैं परिवार को चलाने के लिए। From the moment she opens her eyes in the morning till she sleeps, she works the whole day. और जिस समय उनकी आंख सुबह खुलती है उस समय से लेकर और रात के आखिर तक जब तक उनकी आंख बंद ना हो तब तक वो काम पे काम वो करती रहती है। She sacrifices everything that she has for her children. और वो हर एक चीज को वो भूल जाती हैं अपने बच्चों की खुशी के लिए। Whether her children are in the school or her children are in the college or in workplace, her mind, her heart will be always with her children. और अगर उनके बच्चे कॉलेज में हैं, अगर स्कूल में हैं, कहीं पर भी अगर क्यों ना हो, अगर बाहर किसी काम के लिए गए हैं, हमेशा एक माँ का मन उनके बच्चों की तरफ में हमेशा लगा रहता है। Let us also remember her unconditional love. क्या हम इस बातों को हम याद कर सकते हैं कि किस रीति से हमारी माँ हमसे प्यार करती है? She didn't make any excuse whether she is strong or weak, whether she is sick or not sick. She loved her children, her family without any condition. हमारी माँ हमारे बारे में इतना ध्यान रखती है कि वो अपने बारे में वो नहीं सोचती है कि वो बीमार है, क्या वो ठीक है, क्या वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमेशा हमारे बारे में वो चिंता करती है। She dedicated her lives to the well-being and to the healing in her family. वो अपने पूरे लाइफ को, अपने पूरे जीवन को अपने बच्चों के पीछे वो दे देती हैं ताकि उनको एक अच्छा जीवन उनको मिल सके। Let us also try to remember how much our mother prays for us. आइए प्रियो, हम इस बातों को भी हम देखेंगे कि एक माँ हमारे लिए कितना प्रार्थना करती है। Fervent prayers without ceasing, she prays for her family. उत्कट प्रार्थना अर्थात इसका ये मतलब कि बिना रुके प्रार्थना करना पूरे परिवार के लिए। She prays for the nation, for the world, for the society and for everything. प्रार्थना जो पूरे परिवार के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे समाज के लिए, वो हर एक के लिए वो प्रार्थना करती है। वो I am
seeing these days many mothers, they go to church early in the morning before they start any daily routines of their works. They go to the church and pray. और मैं ये बहुत ऐसी माओं को मैं देखी हूँ जो सुबह सुबह उठकर परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना करती हैं। Such families I am seeing, they are living in peace, success and prosperity. और आज मैं इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि वैसे जो परिवार हैं जो परमेश्वर के सामने सुबह सुबह पहुँचते हैं वो अपने जीवन काल को बहुत ही शांति में वो बिता रहे हैं। Let us also remember our mothers, their selfless devotion. और परमेश्वर के तरफ से जो अपनी माओ को हम जो देखते हैं वो अपने जितने सारे जो इच्छा हैं उनको भुलाकर अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरी करते हैं। She is unselfish towards her children. वो अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हैं बल्कि वो अपने बच्चों के बारे में वो सोचती हैं। She gave up what she wants to do. She gave up what she likes to do to fulfill their children's dreams. एक माँ जो अपने बारे में नहीं सोचकर जो वो करना चाहती थी अपने जीवन काल में जो वो नहीं कर सकी, लेकिन आज एक माँ अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ वो पूरा करना चाहती है कि मेरा बच्चा वो चीज को पूरा करे जो मैं नहीं कर पाई। Not only that, mothers gave a wonderful guidance to the children. और सिर्फ इतना ही नहीं लेकिन अपने जो बच्चों को एक माँ एक सही राह भी वो दिखाती है। They offer wisdom and support. बुद्धि से और ज्ञान से पूरे परिपूर्णता के साथ अपने बच्चों को सिखाती है। When children are down, when they are sick, when they are mentally down, when they are academically down, spiritually down, they encourage to make their spirit alive. और एक बच्चा जब वो बीमार पड़े चाहे वो जिस भी मोड़ पे वो क्यों ना हो, एक माँ उसके संग हमेशा रहती है उसको दिलासा देने के लिए कि मैं उसके संग हूँ, परमेश्वर उसके संग है। She offer wisdom and encouragement to the children. और बुद्धि से और ज्ञान से और बढ़ोतरी के साथ अपने बच्चों को बढ़ाती है। She also has a mother's love. और उनके पास भी एक माँ का प्यार जिस स्थिति से हम देख रहे हैं जो दर्शाया जाता है। Our mothers don't want to do what we don't want to do. हमारी माँ वो नहीं चाहती जो हम नहीं करना चाहते हैं। She always cook our favorite food. और वो हमेशा वही वो खाना को बनाती है She जो always- हम पसंद करते She हैं। is always ready to listen to our stories. और वो हमेशा हमारी कहानियों को सुनने के लिए तैयार है। She is always ready to buy for us our favorite toys, our favorite dress for us. और वो हमेशा तैयार रहती है कि हम क्या पहनेंगे और क्या खाएंगे और कौन से खिलौने से हम खेलेंगे, वो हमेशा प्रस्तुत रहती है। Her love is unfinished. और उनका जो प्यार है वो अपरंपार प्यार है Goes from day to day. It goes endlessly. और वो बहुत ही अधिक हो जाता है और वो कभी भी खत्म नहीं होता। That's why her love is unconditional. और उनका जो प्यार है वो अद्भुत प्यार है, वो अपरंपार प्यार है। Whatever situations we are in, still she loves us. और जैसा भी काम क्यों ना हो, जैसा भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, एक माँ अपने बच्चों से प्यार करना कभी भी बंद नहीं करती है। For all this love, for all this sacrifice that she did for us, we should respect our mothers. जितने सारे बलिदान को एक माँ भूलकर अपने बच्चों के लिए वो दे देती है, क्या हम आज मिलकर अपने माँओं को क्या हम सम्मान हम दे सकते हैं? If friends, if you think nicely, nobody apart from our parents, nobody will do all this love for us. और मैं आपसे कहती हूँ प्रियो कि माता पिता को छोड़कर इतना प्यार हमसे कोई भी नहीं कर सकता है। Only our parents can do for us. सिर्फ हमारे माता पिता ही हमसे इतना प्यार कर सकते हैं। They deserve our best care we can afford to give them. और वो हमें ऐसा प्यार करते हैं कि जिसको हम कहीं से भी हम नहीं पा सकते, सिर्फ हम माता पिता के पास ही हमें वो प्यार मिल सकता है। Some parents, they may require our extra caring and our extra love.
और ऐसे भी माता पिता हैं प्रियो कि जो बुजुर्ग जब हो जाते हैं तो हमसे कुछ अधिक प्यार वो चाहते हैं, क्योंकि वो वैसा काम वो नहीं कर पा रहे जैसे वो पहले करते थे। Especially when they become old, these days many children, they don't want to put their parents with them and they will send them to the homes. जैसे कि आज के जीवन काल में हम देख रहे हैं प्रियो कि जब माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चे अपने संग अपने माता पिता को नहीं रखते हैं, वो उनको दूर भेज देते हैं। To my knowledge, no all people would like to go and stay in old age homes. लेकिन मैं आपसे कहती हूँ प्रियो, आज के जीवन काल में ऐसा कोई माता पिता नहीं है जो बाहर जाकर ओल्ड एज होम में अपने माता पिता को डाले, और वो भी वहाँ पे नहीं रहना चाहेंगे। Every old parent, they want to stay with their children and enjoy their grandchildren in their own homes. हर एक माता पिता और हर एक बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों के संग ही, अपने नाती पोतों के संग घर पे रहना पसंद करते हैं। So since they have sacrificed their lives, their times, their money to bring us up, we should return our love, our respect to them. जितना समय उन्होंने हमें दिया है अपने जीवन काल में, अपने जवानी के जीवन काल में, और मैं आपसे आज मैं कहती हूँ कि हम भी उतना ही हम उनके लिए करें जितना हम कर सकते हैं। Let us not make them sad and gloomy when they become old. और जब वो बुजुर्ग हो जाएं तो हम याद रखें कि हम उनको उतना हम दुख दर्द हम उनको ना पहुंचाएं, बल्कि हम उनसे प्यार करें। We should not let them curse us. और मैं आपसे ये भी कहती हूँ कि उनको कभी भी श्राप ना दें, Because the Bible clearly says that if you curse your mother and your father, our lamb, that means our life, will be in darkness. और जिस रीति से वचन में लिखा गया है, नीति वचन उसका 20 अध्याय और उसके 20 पद में, कि अगर कोई अपने माता पिता को श्राप देता है तो उसका जीवन बिल्कुल अंधकार में चल जाता है। Let us not forget that one day we also will become old one day. और इस बात को कभी भी ना भूले कि एक दिन हम भी एक दिन बुजुर्ग होंगे। What we do to others, we may get the same thing. Let us not forget. और जिस रीति से हम दूसरों को हम देख रहे हैं आज, उस रीति से हमारे संग भी वैसा ही हो सकता है प्रियो, कि हम ये बात को हम कभी भी ना भूलें। In conclusion, let me say that respecting parents is not only just for good names. और आज के इस वचन को मैं खत्म करते हुए मैं बोलना चाहूंगी कि माता पिताओं को सम्मान देना ही यही सी बड़ा काम नहीं है, But respecting parents is a reflecting our faith on God. और सम्मान देना अपने माता पिता को ये दर्शाता है अपने विश्वास को परमेश्वर की तरफ। Respecting parents is our gratitude towards God for giving us wonderful parents in our lives. और माता पिता को सम्मान देना इस बातों को ये भी दर्शाता है कि हम अपने आप को परमेश्वर की तरफ से किस रीति से हम सहभागिता में दें। Respecting parents is our understanding towards God's plan for us. और माता पिता को सम्मान देना और इस बात को भी दर्शाता है कि हम परमेश्वर को हम मद्देनजर रखकर हर एक काम को करें। Mother's Day is not something that we give flowers or some gift today. मातृ दिवस कुछ ऐसा दिवस नहीं कि जिस दिन हम फूल और तोहफे को हम लोग दें, But it is our devotion, our respect, our honor that they deserve every single day. और ये सिर्फ हमारे प्यार को नहीं दर्शाता, ये हमारे प्रेम को नहीं दर्शाता, ये हमारी धार्मिकता को और हमारे विश्वास को नहीं दर्शाता, बल्कि ये हर दिन ये लागू होता है, बल्कि एक दिन सिर्फ लागू नहीं होता। Every day they rightly deserve our obedience. हर दिन एक माँ एक सभी बातों के हकदार है। Every day they deserve our respect. हर दिन एक माँ हमारे हर एक प्यार के हकदार है और हमारे सम्मान के हकदार है। Every day they deserve our affection and love. और हर एक दिन एक माँ हमारे प्रेम के हकदार है। Every day they deserve our wisdom, our righteousness and our care. और हर एक दिन हमारे बुद्धि से, हमारे ज्ञान से, किस रीति से हम बातचीत करते हैं वो लागू होता है। Let us respect our mothers
every single day. आइए प्रियो, इस मातृ दिवस के दिन हम लोग अपने माँ का हम सम्मान करें हर एक दिन। Through our devotion, let us bring smiles to our mothers' lives. हम अपने जीवन काल से हम शुरू करें प्रियो कि हम किस रीति से अपने माताओं को हम धन्यवादित रूप में हम सम्मान हम देना शुरू करें। May their lives be full of joy, happiness, and peace because of us. और उनका जीवन उतना ही शांतिमय हो जाए हमारे प्यार को दर्शाते हुए। May God grant into our lives a mind, a heart to respect our mothers. और इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम इस बात को हम पूर्ण रीति से हम ध्यान में रखें कि अपने माता पिता को हम शुद्ध रीति से हम सम्मान हम दें। May God bless all of us. Once again, Happy Mother's Day. और मैं आप सभी से मैं अलविदा में कहूंगी और इस वचन को बंद करते हुए मैं कहूंगी कि आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं इस मातृ दिवस के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। Thank you. धन्यवाद। मुझे आशा है कि आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको छुआ है और परमेश्वर ने आज के यंगस्टर से परमेश्वर ने आज बातचीत किया है। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा प्रियो कि अपने माता पिता का आप सम्मान करें क्योंकि वो सम्मान के वो हकदार है। सोलोमन राजा भी कुछ इसी प्रकार से वो कहता है और पौलुस भी अपने पत्री में इफिसियों की मंडली को कुछ इसी प्रकार से वो कह रहा है। एंड आई होप कि आप इस वचन से आप बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं और आज ही से आपने कुछ डिसीजन आपने लिया होगा। प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। परमेश्वर आपको बहुत 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 आपको आशीष दे और हमेशा चर्च के संग बने रहिए। आप जहाँ कहीं भी हैं, कोलकाता में आप जहाँ कहीं भी हैं, इस चर्च में आप जरूर आएं और लोकेशन आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लोकेशन है, आप वहाँ पर जाकर मैप में आप जाकर चर्च को आप देख सकते हैं और आप जहाँ कहीं भी हैं आप यहाँ पर आए। परमेश्वर आपको बहुत आपको आशीष देगा इस वचन के द्वारा और चर्च के द्वारा। और अगर आप पास्टर से आप मिलना चाहते हैं, अगर आप फोन में बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमसे जरूर आप कांटेक्ट करें और अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भी आप हमको आप जरूर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे प्रियो। और अपकमिंग जितने सारे जो इवेंट्स हैं उसमें भी हम लोग अपलोड हम लोग करते रहेंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब को आप लोग फॉलो करिए और लिंक यहाँ पर दिया गया है, आप उसे फॉलो करिए। और इन अपकमिंग जो भी इवेंट्स हैं जो हम लोग पीस चर्च करने वाला है, रेवरेंड तेजाराव मिनिस्ट्री जो करने वाला है, वो आप उसे आप हम लोग एक साथ मिलकर सहभागिता में आकर हम लोग कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की फिर से एक बार प्रेज द लॉर्ड और अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए।